So good afternoon, everyone. Today's session is actually going to be very, very exciting. एक तो इसलिए क्योंकि बहुत ही यंग मेंटोर है आज महिमा, एंड सेकेंडली इसलिए भी कि टॉपिक भी जो है दैट इज कॉल्ड कि इट इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, आपके लिए नहीं है. सो बच्चे मोस्टली हम लोगों को यही बोलते हैं कि मम्मा व्हाट आर यू डूइंग ऑन इंस्टा, दिस इज नॉट फॉर यू. So today Mahima will actually take us on a journey on Insta, and maybe after this we can tell our kids a few tips on how to use Insta stories. So we all hope कि ऐसा कुछ होगा आज, and I hope सबके पास एक एक्स्ट्रा फोन है जहाँ पर कि वो इंस्टा पर अपने जो जो महिमा बताएगी वो अपने ट्राई कर सकते हैं साथ साथ, so that we do not forget later on, and hands on हो जाए साथ साथ में. And Zoom you can use it on a computer or any other device जहाँ पर कि आप इंस्टा नहीं यूज करोगे. So I welcome Mahima, and Mahima is doing a fantastic work. So let me tell you about Mahima. Mahima is actually the founder of the Social Pathshala. मैं अपना तरफ से बता रही हूँ जो कि मैंने देखा उसके आर्टिकल्स वगैरह पर, that she is creating awareness about how one can use technology for their own benefit amongst the senior citizens, and now she is moving down the age bracket. So हम लोग though we are not senior citizens, but now Mahima is actually moving down the age bracket. So she will also create awareness amongst us कि how जो existing features है हर एक app के, to be very specific about Insta today. So Insta का existing features के साथ हम लोग कैसे beautiful stories create कर सकते हैं. And Mahima is actually very different from what she does professionally. So Mahima has completed her masters in luxury goods and services management from Milan, Italy. और यहाँ पर वो जो कर रही है बिल्कुल social work, which is absolutely different from her professional field. She holds 3 years of experience in handling the marketing and communications for world's most popular hospitality brand, which is Marriott International. And there she was responsible for the implementation of marketing campaign at Marriott. She drove the organic increase of Instagram followers of the hotel's page from just 3,000 to 18,000 in less than 2 years, 1.5 years actually. So it was 6 times increase in a hotel brand's Instagram followers. And from there I think Mahima, you must have picked up कि you have that creative knack and how to use the technology, and from there she started to share her knowledge and experience with others. To be very specific, with senior citizen, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ because senior citizens को usually कोई सिखाना नहीं चाहता है, because they feel कि वो use तो करेंगे नहीं, छोड़ दो यार, समझेंगे नहीं, या आप क्या करोगे दादी, या आप क्या करोगे दादाजी. So that kind of feeling. But Mahima is under Social Pathshala. She is doing a fabulous job. Mahima, please unmute yourself. Thank you, Kavita ji. I'm really thankful to my sister who introduced me to Kavita ji, because without her, I wouldn't have gotten a chance to showcase something which I know on this platform and through which I can help others. And my aim has always been to help everybody. So I really hope I can be of some help to everyone who's come for this session. Absolutely. We all will be, I think more enlightened people after the session on Instagram at least. So सबको हम लोगों को थोड़ा इंस्टा से डर लगता है. We are all more comfortable with Facebook rather than Insta. But आज के बाद I think we all will like to use Insta more than Facebook. Yes. Shraddha has something to say. So बहन कौन है तो बताएं नहीं महिमा. बहन introduce कर लेगी. Shraddha unmute. नहीं, मुझे वो नहीं बोलना था. I just wanted to share one hidden talent of Mahima, that she is an excellent singer. She sings really well. So you guys, I mean, if we have 5 minutes, we must listen to her singing. She is an excellent singer. Wow. So Insta पर कोई वीडियो वगैरह डाला है कि नहीं महिमा?
मेरे पेज पे है, बट दैट वाज व्हेन लॉकडाउन हैड स्टार्टेड. मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैंने 3-4 वीडियोस डाल दिए थे. तो Okay. जिसको देखना है उसमें देख लीजिए. Absolutely. So महिमा, वेलकम टू कैफे प्लेटफॉर्म. एंड जैसे कि आप सीनियर सिटीजन्स पर फोकस करते हो, इन कैफे वी फोकस मोस्टली ऑन विमेन, you know, who are 30 plus 35 plus years of age, when the kids grow up a little and women find time for themselves and फिर लगता है कि अब मैं अपने लिए कुछ करूं. So this is the platform where we connect them all to each other and give them a platform where they can learn and grow together. So today, thank you so much, Mahima, for all the time and sharing your knowledge and experience with us. Most welcome, and I really hope everybody enjoys the session. Thank you, Kavita ji, once again for giving me this opportunity. Totally our pleasure, Mahima. हम लोग तो सब वेट कर रहे हैं कि इंस्टा का कैसे स्टोरीज अब बनाएं अपना. Okay, so before I start, I would love to introduce to you about my initiative, because that is something which is my passion right now. So I would love to share about that before we start today. So just आप लोग सिर्फ मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं बोर नहीं करूंगी किसी को भी, I promise. Absolutely. Okay. तो मेरी इनिशिएटिव का नाम, जैसा कि आपने कविता जी से सुना, सोशल पाठशाला है. एंड मैं उसकी स्टोरी बताना चाहूंगी सबको, बिकॉज सब लोग को लग रहा होगा कि मुझे ये थॉट कैसे आया. मैं कॉर्पोरेट में काम करती थी, तो मुझे कॉर्पोरेट में काम करते वक्त ही ये थॉट आया. मैं मेरी बॉस के साथ कैंटीन में बैठी थी और बॉस की मम्मी का बार बार कॉल आ रहा था, अरे मेरे लिए कैब बुक कर दो, अरे वो कैब वाले का नंबर क्या है, मेरे को प्लीज उसका नंबर दे दो. तो उसने मुझे बोला कि महिमा, मम्मी मेरे को रोज कॉल करती है कैब बुक करने के लिए, इतना डिफिकल्ट है क्या कैब बुक करना? तेरे को सोशल मीडिया इतना आता है, तू प्लीज उनको, तू ऐसे बूढ़े लोगों को सिखाना. मैंने बोला हाँ, नॉट अ बैड आइडिया सौरभ, आई कैन ट्राई. देन ही इनकरेज मी कि तू कर, यू नो, तू कर सकती है, तेरे में वो है, कुछ कर तू. So that is when मैंने सोशल पाठशाला स्टार्ट किया. बट क्योंकि मेरा मंडे टू सैटरडे ऑलमोस्ट वर्किंग होता था, मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने उसको फुल टाइम नहीं किया. बट अभी जब लॉकडाउन चालू हुआ, मैंने कितने लोगों को देखा दैट उनको प्रॉब्लम हो रहा था ग्रोसरीज बाय करने में, ऑनलाइन शॉपिंग करने में. तब मुझे लगा कि ये एकदम करेक्ट टाइम है. अगर मैं थोड़े बहुत लोगों को भी अगर हेल्प कर पाऊँ, आई विल बी वेरी हैप्पी. देन मैंने वापस सोशल पाठशाला का जो जर्नी है, मैंने अभी मई में चालू किया इन 2020 पैंडेमिक के टाइम. So I think I am the only one who is very happy क्योंकि कोरोना वायरस हुआ, because मुझे सोशल पाठशाला चालू करने का encouragement तभी मिला कोरोना की वजह से. So I think I am the only happy one. जो मैं सोचती हूँ कि कोरोना was very lucky for me. But jokes apart, this is the story about my journey. So जैसा कि आपने कविता जी से सुना, I have completed my masters in luxury goods and services management. मैं और नहीं बोलूँगी because it's just a repetition. तो सोशल पाठशाला का एम यही है, टू बी द पायोनियर इन होनिंग द डिजिटल स्किल्स ऑफ द एल्डरली सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड हेल्प देम अडेप्ट टू द न्यू नॉर्मल. क्योंकि अब न्यू नॉर्मल हो गया है टेक्नोलॉजी के बारे में जानना. तो मेरा यही एम है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं उनको बेसिक ट्रेनिंग दूँ ताकि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू मी, टेक्नोलॉजी सबसे ईजीएस्ट चीज़ है सीखने के लिए. कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, सिर्फ थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है. तो सोशल पाठशाला द्वारा हम डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं और हम 2 सेशंस लेते हैं, ऑनलाइन ग्रुप सेशंस जो कि संडेज को होता है और पर्सनल सेशन. ऑनलाइन सेशंस जो संडेज को होता है वो 99 रुपीज का है, और अगर किसी को मेरे साथ ज़्यादा पर्सनल 1-on-1 कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के बारे में इच्छा हो, so that is for 300 rupees. So हम अपना रेट्स भी जानबूझ के अफोर्डेबल रखते हैं ताकि किसी को हमारे क्लासेस में एनरोल करने से पहले 2 बार नहीं सोचना पड़े. तो हमारा कमिटमेंट यही है कि हम अटेंशन टू डिटेल पे फोकस करें, बिकॉज बहुत टीचर्स लोग होते हैं जो लोग सिखाते हैं, बट बहुत कम होंगे जो लोग हर एक डिटेल के साथ और कंपैशन के साथ सिखाएंगे. हम लोग को सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना है. लाइक मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को बोलूँ कि वो मेरा क्लाइंट है. मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी को बोलूँ कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है. बिकॉज अगर मैं सीनियर सिटीजन्स स्पेशली उनके साथ अगर मैं फ्रेंडली नहीं हुई, तो मैं उनके साथ बॉन्ड नहीं बना पाऊंगी और उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. दे जस्ट नीड लव. तो अगर मैं प्रोफेशनल रहूंगी ज़्यादा,
तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई आई वांट टू इंश्योर कि जितने भी क्लाइंट्स आए और कस्टमर्स आए उनके साथ मैं जो रिलेशन बनाऊँ वो अच्छे हो. क्वालिटी सेशन ऑब्वियसली, क्योंकि हम सब सीखना चाहते हैं, तो जो सीख रहे हैं वो क्वालिटी वाली हो एट अफोर्डेबल रेट्स, जैसा कि आपने देखा. एंड हमारे सेशन के बाद जो फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, हम लोग इसलिए फ्री रखते हैं बिकॉज बहुत लोग नए हैं टेक्नोलॉजी में, एक क्लास में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो जो भी हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिकॉज आई वांट कि लोग डाउट सॉल्विंग के पहले ये नहीं सोचा रहे मुझे वापस पे करना पड़ेगा. अब जो डाउट है आप पूछ के खत्म करिए और अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर हो जाइए. तो ये हमारा आउटलाइन है, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. हम लोग पार्टिसिपेंट्स को ये बिलीव करवाते हैं कि आप भी ये कर सकते हो. फिर हम कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम जो भी क्लास में होता है उसको रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं. हम लोग एक साथ बहुत कुछ नहीं सिखाते, वी ऑलवेज रिवाइज एंड देन वी मूव अहेड. लैंग्वेज करंटली हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू रिफ्लेक्ट. टारगेट क्लाइंट्स, हमने सीनियर सिटीजन्स का सोच के चालू किया था, बट मैंने जब चालू किया मुझे इतना डिमांड आया बाकी सब लेडीज लोग से भी, आप प्लीज हम लोग को भी ये सिखाइए, हम लोग को ऑनलाइन क्लोथ सेल करना है, हम लोग को शॉपिंग करना है, अमेजोन में हमें शॉपिंग नहीं आता ठीक से, क्या करना है. देन मेरे को समझ में आया कि कितनी सारी लेडीज है जो लोग घर पे बैठे हैं एंड उनको कुछ नया सीखना है, एंड वो लोग एक छोटी सी भी कोई नई चीज सीखते हैं ना, उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ लाइफ में. तो मैं चाहती हूँ कि I can be the medium to inculcate that, because हर कोई हर कुछ कर सकता है अगर अंदर से उस चीज करने की इच्छा हो. तो वो मैंने रियलाइज कराया. अगर मैं लॉकडाउन में ये सोचती कि नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मैं ऐसी बैठी हूँ, कभी कोरोना खत्म होगा, तो शायद मैं ये नहीं कर पाती. बट मेरे मम्मी पापा मेरी बहन ने मुझे बोला कि तू अगर कुछ अलग कर सकती है तो प्लीज डू, एंड अंदर से इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू डू इट तो वो हो जाता है. तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी एल्डरली सिटीजन्स और लेडीज हैं हु आर अबव 40 इयर्स ऑफ एज, उनमें वो कॉन्फिडेंस हो कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं. दीज आर आवर टारगेट क्लाइंट्स. अब हम लोग ने एक नया जैसे कि वर्टिकल इंट्रोड्यूस किया है, जैसा कि कविता जी ने बोला, पाठशाला फॉर हर. हर मीन्स ऑल द मदर्स, ऑल द होम मेकर्स हु वांट टू लर्न समथिंग न्यू. और न्यू बेसिक भी हो सकता है, चाहे आपको फोन का ब्लूटूथ भी नहीं यूज करना आता हो, हम सब सिखाएंगे. बट हम चाहते हैं कि जो आप फोन यूज कर रहे हो आप वो एक्चुअल में यूज करो, खाली फोन आपके पास रहने के लिए नहीं है. तो दिस इज आवर एम कि पाठशाला फॉर हर द्वारा हम लेडीज लोग को टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम बढ़ाए. तो लेडीज का भी हम क्लासेस 99 में ही रखते हैं, हमने कोई भी रेट चेंज नहीं किया है, बिकॉज वी वांट टू कीप इट अफोर्डेबल. तो हमारे जितने भी सेशंस होते हैं उसमें वी टीच एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. तो आप लोगों को अगर कुछ भी सीखना हो, get in touch with us. कुछ anything, any sort of help, you can get in touch with us. And ये schedule है, I can share this जब हमारा session end हो रहा होगा तब again. But this is a schedule for next week. हम सिर्फ 2 ही दिन रखते हैं, Tuesdays and Thursdays, not every day. And this is our client profile. When I started social पाठशाला, मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि हम जब सीखते हैं लाइफ में, every day if we learn something new, तो हम कभी भी बूढ़े नहीं होते, because learning has no age. Even if you're 20 or you're 80. मैंने मेरे क्लासेस में 2 आंटी लोग को सिखाया, they were 85 years old. उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, बट उनको मेरा नाम याद था. उनको पता था कि अगर कहीं पे भी अटकेंगे तो महिमा को कॉल करना है. So these are few things which I feel gives me immense happiness from inside. मुझे इतनी खुशी होती है. एक्चुअली हेनरी फोर्ड का जो वो सेइंग है, he is the founder of the very famous car company Ford. उसने बोला है that anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80, and anyone who keeps learning stays young. So I think all of you who are here, all of us are very young because we are learning. We are learning every day, and we have people like Kavita ji who are helping all of us to give a platform so that we all can learn together. So I think we should be very thankful to platforms like these. And
that's it. If you want to follow me on social media, ये मेरे social media के handles है, social पाठशाला, Facebook और Instagram पे. तो आज जितने भी लोग Instagram पे है, आप लोग प्लीज social पाठशाला को follow करिए. ओके, तो आज का एजेंडा जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम का स्टोरी का फीचर्स समझेंगे. अब आप सब लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में पता है या नहीं, आई डोंट नो. आई विल ऑब्वियसली व्हेन आई स्टार्ट मैं आप लोगों को पूछूंगी, बट हम लोग आज सीखेंगे कि जो इंस्टाग्राम में हम स्टोरी अपलोड करते हैं उसको हम और कैसे बेहतर वे में अपलोड कर पाए, कैसे हम लोग इंस्टाग्राम का ही फीचर्स यूज करके वी कैन मेक द स्टोरीज लुक वेरी ब्यूटीफुल. थोड़े प्रैक्टिकल, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं थ्रू आउट करूंगी, मैं कुछ भी थियोरेटिकल नहीं रख रही हूँ आज के सेशन में. और लास्ट में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ कंटेंट कैलेंडर. तो अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वरना जो कंटेंट कैलेंडर का टेम्पलेट है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, so you don't have to worry. Okay, so is there anybody who has to ask anything before I start? Please ask. I think Mahima, we can start. Okay. So मेरे क्लास का रूल है, बिफोर एनी सेशन मैं सबको अपने लिए क्लैप करने बोलती हूँ, बिकॉज आप लोग अपने लिए कुछ सीख रहे हो. सो प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्व्स. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योरसेल्व्स. मैं ये हर सेशन में कराती हूँ. मेरे संडे सेशन में जितने भी लोग आते हैं, सुबह आते 11 बजे, तो आई वांट कि सब लोग एनर्जेटिक हो एंड वी लर्न समथिंग न्यू. सो आई वांट एवरीबडी टू ओपन योर इंस्टाग्राम. I will connect to mine meanwhile. Just give me a moment. I will be connecting my screen. Okay, can everybody see my screen? Can I get a yes in the chat box? Yes. Okay. जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जब मैं सेशन में कुछ भी बोलूंगी, आप लोगों को जब मैं बोलूंगी मेन पेज पे आने, आप लोगों को इधर ही आना है. तो आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं, जहां पे घर का आइकन है, घर का, हाउस का, दैट इज योर होम पेज. मतलब कि यहाँ पे आप जितने भी लोगों को फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, फॉलो, आप लोगों को उन सभी का पोस्ट यहाँ पे दिखेगा. तो मैं जब भी एक चीज कंप्लीट करके आप लोगों को मेन पेज पे आने बोलूंगी, तो आप लोग को यहाँ पे आना है, जहाँ पे घर का आपको आइकन दिख रहा है, एंड दैट इज ब्लैक. तो जब भी आप घर पे रहोगे तो वो आइकन ब्लैक हो जाएगा. तो इज एवरीबडी क्लियर कि मैं जब मेन पेज में आने बोलूंगी आप लोगों को कहाँ आना है? Can I go ahead? Yes. Okay. Now, first rule of Instagram story. Instagram story हम जब भी अपलोड करते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स तक वैलिड होता है. मतलब जैसे कि 24 आवर्स खत्म हुआ, आपका स्टोरी ऑटोमेटिकली निकल जाता है इंस्टाग्राम से. तो डोंट वरी अगर आपका स्टोरी कल 4 बजे गायब हो गया हो, वो 24 आवर्स का रूल होता है. तो जैसे आप लोग कुछ भी अपलोड करोगे, खाली 24 आवर्स तक रहेगा. अब स्टोरी अपलोड करने के 2 तरीके होते हैं, जैसा जिसको कंफर्टेबल हो. I think somebody has raised a hand. Is there anything which somebody wants to ask? Beena? I think that's by mistake. Okay. 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 So हम स्टोरीज 2 वेज में अपलोड करते हैं. जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऊपर लेफ्ट साइड में कैमरा है. सब लोग कैमरा देख सकते हैं. आप वहां पे जाके स्टोरी अपलोड कर सकते हो. और सेकंड जो वे है, आप लोगों को अपनी प्रोफाइल पे जाना है. अब आप प्रोफाइल पे कैसे जाओगे मैं वो बताती हूँ. जहां पे आपने घर का आइकन देखा नीचे, एकदम नीचे, उसके एक्सट्रीम राइट साइड में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, वो आपका प्रोफाइल है. ओके,
तो आपको यहाँ पे जाके भी आप स्टोरी अपलोड कर सकते हो। आपको जो अपने प्रोफाइल का पिक्चर दिखेगा सर्कल में, वहां से भी जाके आप स्टोरी अपलोड कर सकते हो। मेरे में प्लस का आइकन नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने स्टोरी ऑलरेडी डाल दी है। आप लोगों में सर्कल के राइट साइड में एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, करेक्ट? ओके, सो दीज आर टू वेज। एक तो आप होम पे जाके कैमरा के बटन पे क्लिक करके स्टोरी अपलोड कर सकते हो, या फिर प्रोफाइल पे जाके। मैं होम प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो इजी है, मेरे लिए इजी है। आप लोगों को जो कन्वीनियंट हो आप लोग कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एकदम बेसिक्स पहले करवाऊंगी स्टोरी का, एंड देन आई विल मूव अहेड विद द फीचर्स यू कैन यूज। रागिनी जी, यू कैन पुट एनी नंबर ऑफ स्टोरीज। स्टोरीज डालने का कोई लिमिट नहीं होता है, सिर्फ टाइम लिमिट होता है 24 आवर्स का, दैट्स इट। बट हाँ, अगर एक और टिप है, अगर आप में से किसी का भी छोटा बिजनेस हो या फिर आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हो, प्लीज पुट अ स्टोरी एवरी डे। इंस्टाग्राम स्टोरी शुड बी पुट एवरी डे, तो ही लोग आपके पेज को देखेंगे। उसका लॉजिक ये है, आप जैसा कि मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं जितने भी लोगों को फॉलो कर रही हूँ उन सभी का स्टोरी सबसे ऊपर आ रहा है, सर्कल्स। तो आपको जितने भी सर्कल्स दिख रहे हैं वो सब स्टोरीज है। तो मैं एज अ यूजर, अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ और मैं कोई भी बिजनेस को फॉलो कर रही हूँ और मेरे को रोज उसका कोई ना कोई स्टोरी दिख रहा है, तो मेरा रिटेंशन कैपेसिटी ब्रांड के बारे में बढ़ जाएगा। मुझे याद रहेगा, अच्छा मैरियट ने ये स्टोरी आज पोस्ट किया था ब्रंच के बारे में। ये जो लेडी है ये साड़ी का बिजनेस करती है, उन्होंने ना एक नई साड़ी की कलेक्शन का स्टोरी पोस्ट किया। मुझे रोज अगर वो स्टोरी दिखेगा तो मुझे वो ब्रांड के बारे में रिकॉल वैल्यू भी बढ़ेगी। इसलिए हमें स्टोरीज रोज डालना है। इफ यू ऑल आर स्मॉल बिजनेसेस, प्लीज पुट स्टोरीज एवरी डे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो स्टोरी के लिए मैं पहले कैमरा के बटन पे जाऊंगी जो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में है, होम पे। मैं वहां पे गई, सॉरी, ओके, तो मैं कैमरा के बटन पे गई और मैंने यहाँ पे देखा कि स्टोरी लिखा हुआ है। क्या आप सभी लोगों को स्टोरी लिखा हुआ दिख रहा है नीचे? ओके, नाउ आप 2-3 टाइप की स्टोरीज कर सकते हो। या तो वो वीडियो हो सकता है, या फिर वो नॉर्मल एक फोटो हो सकता है जो आपके फोन के गैलरी में हो, या फिर आप रियल टाइम एक फोटो खींच सकते हो। तो आज हम लोग सब लोग वो ही फोटो यूज करेंगे जो हमारे फोन में हो, क्योंकि रियल टाइम में हम अपने घर का फोटो नहीं खींच के कुछ करेंगे। जो हमारे फोन पे फोटो है हम वो यूज करेंगे। नाउ, हाउ विल यू चूज अ फोटो फ्रॉम योर फोन टू बी यूज्ड एज अ स्टोरी? आप सभी लोगों को लेफ्ट साइड में, आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड के बॉटम पे ध्यान देना है। आपको एक स्क्वायर आइकन दिख रहा होगा। स्क्वायर आइकन आप क्लिक करोगे तो आपको गैलरी ओपन हो जाएगा, आपके फोन का गैलरी ओपन हो जाएगा। नाउ, आपके फोन के गैलरी में से आप कोई भी एक फोटो सिलेक्ट करिए, एनी वन फोटो यू लाइक। आई एम ऑल्सो सिलेक्ट वन फोटो विच आई हैव this photo. I was in just a moment. Okay. Okay, can everybody see my screen? Yes. Okay. Yes, profile photo and story are different. Profile photo is your own profile photo, and story is something जो आप रोज डालते हो अलग अलग फोटोज या वीडियोस के फॉर्म पे। ओके, नाउ मूविंग अहेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने मेरे फोन की गैलरी से एक फोटो सिलेक्ट किया। अब मैं इंस्टाग्राम स्टोरी के कौन से फीचर्स यूज करके इस स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगी ना। आप ऊपर देख सकते हो, आपको एक हंसने का सिंबल दिख रहा है लेफ्ट साइड में, सबसे पहला सिंबल आपको हंसने का सिंबल दिख रहा है। आईफोन यूजर्स आप लोग को ये सेकंड सिंबल होगा शायद। एनीवे, जो हंसने का सिंबल है वो है फिल्टर।
आप जैसे ही वो सिलेक्ट करोगे आप लोगों को फिल्टर्स दिखेगा. ओके, इज एवरीबडी क्लियर विद व्हाट दे कैन सी ऑन माय स्क्रीन? सभी लोगों को ठीक से दिख रहा है? ओके, सो द फर्स्ट वन इज फिल्टर्स. जैसे ही आपने वो हंसने वाला सिंबल सिलेक्ट किया आप लोगों को नीचे बहुत सारे फिल्टर्स दिखेंगे. ओके, so these are the filters you can choose. तो इसमें आपको जो अच्छा लगता है आप चूज कर सकते हो. मैं ये अभी नहीं चूज करूंगी क्योंकि मुझे फिल्टर्स नहीं यूज करना मेरे फोटो में. मेरा फोटो ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो मैं फिल्टर नहीं यूज करूंगी. बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये सब फिल्टर्स होते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो हर एक फिल्टर के साथ अलग अलग इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आप ये यूज कर सकते हो. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब जो आप लोग को नीचे डाउनवर्ड फेसिंग एरो का बटन दिख रहा है दैट इज फॉर सेविंग द स्टोरी टू योर फोन. तो आप सभी लोगों ने सपोज कोई स्टोरी क्रिएट किया इंस्टाग्राम पे और आपको वो अपने फोन में सेव करना है तो आप ये डाउनवर्ड फेसिंग एरो पे क्लिक करोगे तो आपका सेव हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वाला जो है वो सबसे यूजफुल फीचर है जो मैं बताने वाली हूँ. जैसा कि आप देख सकते हो आपको एक स्क्वायर में स्माइलिंग फेस दिख रहा होगा. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर्स ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरी. तो आप सभी लोग उस पर क्लिक करिए. जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया आप लोगों को ये सब स्टिकर्स दिख रहे हैं. घर पे रहो, सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस, थैंक यू. तो ऑल ऑफ दीज आर स्टिकर्स विच जो कोरोना के टाइम पे इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया था. घर पे रहो मतलब स्टे होम. तो जो लोग भी घर पे रह के कुछ करते थे वो लोग ये स्टिकर डाल देते थे. फिर सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस. अब कोरोना के टाइम बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस थे जो अफेक्ट हो गए थे तो इंस्टाग्राम ने ये तब लॉन्च किया था सो दैट एवरीबडी कैन सपोर्ट दी स्मॉल बिजनेसेस. थैंक यू मतलब हम अगर जितने भी हेल्थ वर्कर्स है या फिर हमारे सर्वेंट्स है उनको अगर थैंक यू बोलना हो तो हम ये स्टिकर यूज करके बोलेंगे. Okay, now I will show you how you can use some features to create interesting stories. अभी सपोज मेरा अगर एक ट्रैवल कंपनी है और मुझे लोगों को एक क्वेश्चन पूछना है, गेस ये फोटो कहाँ लिया गया था, गेस वेयर दिस फोटो वाज टेकन. तो मैं क्या करूंगी, मैं इंस्टाग्राम का क्विज फीचर जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे क्विज फीचर है, मैं वो सिलेक्ट करूंगी. अब क्विज फीचर में क्या होता है, आप एक क्वेश्चन पूछते हो और उसका 4 आंसर्स आप ऑडियंस को देते हो. उस 4 आंसर्स में से एक आंसर करेक्ट होता है. वी विल सी दैट नाउ. मैं वो क्रिएट करके आप लोगों को बताऊंगी. तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग क्विज फीचर पे सिलेक्ट करें. एक बार उसे क्लिक कर दीजिए और आपको ऐसा आएगा स्क्रीन पे. Okay, who all are not clear with the stickers, please tell me before I move ahead. किसको कहीं पे डाउट है अभी तक? So, महिमा कुछ questions हैं chat box पर. Like who will be able to see our stories, those whom we are following or those who are following us. Okay, fine. Okay, आपके स्टोरीज सिर्फ आपको जो लोग फॉलो कर रहे हो वही लोग देख सकते हैं. तो अगर आपके प्रोफाइल में 50 फॉलोअर्स है तो सिर्फ 50 लोग आपका स्टोरी देख सकते हैं. बट यहाँ पे एक डिफरेंस नोट करिए, एक प्रोफाइल का 2 टाइप होता है, पब्लिक और प्राइवेट. अगर आपका प्राइवेट प्रोफाइल है तो सिर्फ आपके फॉलोअर्स आपका स्टोरी देख सकते हैं और अगर आपका पब्लिक प्रोफाइल है तो कोई भी देख सकता है. आई थिंक आप सभी लोगों का प्राइवेट प्रोफाइल है, इज व्हाट आई थिंक. यस, प्लीज आस्क प्रभा जी. Prabha ji, you have a question? Please unmute. Yeah. I have lost the thread because whenever I'm clicking on the photo which I want to upload,
it says that photos are not supported in Reels. So after that, I have lost everything. Photos are not supported in Reels. No, आंटी आपको क्लिक करना है स्टोरी पे. हम रील्स नहीं सीख रहे, हम स्टोरी पे स्टोरी सीख रहे हैं. तो मैं आपको वापस दिखा देती हूँ. Yes, please. अब आप जैसे आपने ये कैमरा का बटन पे क्लिक किया, आपको स्टोरी पे वो सर्कल दिखेगा, तो ही आपको वहां पे फोटोज आप सिलेक्ट कर सकते हो. आपको रील्स पे नहीं जाना है. Okay. रील्स में आपको ऐसा दिख रहा होगा, आपको स्टोरी पे जाना है. Okay. स्टोरी पे जाने के बाद उसके लेफ्ट साइड में आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा. वहां से आप अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते. Okay. Okay, yes, got it. Okay. Mahima, even Anna wants to know about the sticker part once again. Can you just repeat that once? Okay, sure. तो आप जैसा मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया. अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद मैं जो थर्ड आइटम है लेफ्ट से, और वो थर्ड आइटम कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर है और उसमें स्माइलिंग फेस है, तो मैं उस पे जाऊंगी. यहाँ पे आपको आपके स्टिकर्स दिखेंगे और आपको मूविंग इमेजेस दिखेंगे. ये मूविंग इमेजेस का नाम होता है GIF, जिफ. तो आपको यहाँ पे सब स्टिकर्स दिखेंगे. तो ये सब जो स्टिकर्स है, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज का खुद का स्टिकर्स है, ये किसी और ने नहीं दिया है. तो यहाँ पे अलग अलग स्टिकर्स है. तो अभी हम जो सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग अबाउट द क्विज स्टिकर. क्विज स्टिकर सबको दिखेगा, नीचे थोड़ा जाएंगे तो क्विज लिखा हुआ है उसके ऊपर. अब मैंने क्विज स्टिकर पे सिलेक्ट किया और मुझे ये दिखा. ओके, उर्वी जी, आपका जो डेट लिखा हुआ है पिक्चर पे, आपको वो डेट पे क्लिक करना है आपकी उंगली से और उसको नीचे ड्रैग करना है. आपको डस्टबिन का सिंबल दिखेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टेम्परेचर 30 डिग्री लिखा हुआ है. अगर मुझे ये डिलीट करना है, मैं उसको अपने एक फिंगर से प्रेस करूंगी और नीचे एक डस्टबिन आएगा, उस पर ड्रैग करके उसको डिलीट कर दूंगी. दिस इज हाउ यू कैन डिलीट एनीथिंग, चाहे वो डेट हो, चाहे वो आपका कोई इमोट आइकॉन हो, चाहे वो कुछ स्माइली हो, आप ऐसे डिलीट करोगे. तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे अगर आपको कुछ भी डिलीट करना हो, आपको एक फिंगर से उसको क्लिक करना है और उसे ड्रैग करना है. कोलाज मैं बताऊंगी, आई विल टेल यू अबाउट कोलाज व्हेन वी गो अहेड. फिलहाल मैं अभी क्विज का फीचर बता रही हूँ. तो आप सभी लोगों को क्विज पे सिलेक्ट करना है. नाउ जहां पे गेस माय फेवरेट लिखा हुआ है, वहां पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हो क्विज का. कुछ भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड या फिर कोई और भी चीजों से रिलेटेड. निधि जी, यू कैन अपलोड एनी नंबर ऑफ स्टोरीज इन 24 आवर्स, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो. स्टोरीज के नंबर ऑफ स्टोरीज पे लिमिट नहीं है, वो सिर्फ 24 आवर्स तक रहता है. ओके, नाउ ये स्टिकर पे आप अपना क्वेश्चन लिखोगे. मैं लिखूंगी गेस माय फेवरेट प्लेस. आप लोगों को यहाँ पे वो क्वेश्चन टाइप करना है. गेस माय फेवरेट प्लेस मैंने टाइप किया है, आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो. अब ये वाले क्विज के फीचर में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं. तो जहां पे आपको A दिख रहा है, लाइट शेड में A दिख रहा होगा और ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, तो वहां पे आप जब क्लिक करोगे, आप अपना फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो. तो मैं लिखूंगी बहामास. मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिख दिया. अब सेकंड ऑप्शन पे मैं जाऊंगी और मैं सेकंड ऑप्शन लिखूंगी सेशल्स. ये सेकंड ऑप्शन है. ऐसे ही आपको हर एक ऑप्शन में अपना कुछ भी एक आंसर देना है. आप सभी लोगों को ये याद रखना है दैट चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हम क्विज पूछ रहे हैं. क्विज में एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हम एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो करेक्ट है. और वो हमें कैसे पता चलेगा?
जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो ग्रीन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरे फॉलोअर्स को पूछ रही हूँ गेस माई फेवरेट प्लेस, और ये जो फोटो मैंने डाला है वो सेशल्स का है, तो मैं सेशल्स पे ग्रीन देखूंगी हुआ है या नहीं. अगर ग्रीन हुआ है मतलब दैट इज माई करेक्ट आंसर. सो यू विल ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप 4 ऑप्शंस दे रहे हो उसमें जो ग्रीन वाला है वो सही हो. नाउ आई विल गिव द फोर्थ ऑप्शन, गोवा. Sorry, this is the third one. Then fourth one, Pondicherry. बस मैं सिर्फ 4 ऑप्शन देख सकती हूँ. आप लोग जैसे ही ये 4 ऑप्शन फिल करोगे, जो भी आपका करेक्ट है आप उस पे ग्रीन करोगे. ओके, एंड नाउ वंस यू डू दिस, आप लोग जब ये स्टोरी पे अपलोड करोगे, आपके फॉलोअर्स में से जिसने भी करेक्ट ऑप्शन चूज किया उसको भी ग्रीन आ जाता है. क्या नीचे जा सुलिया? Is everybody clear with this feature? कुछ भी डाउट हो प्लीज पूछिए. Mahima, we can even give less than 4, right? Yes, yes, yes. Maximum आप 4 Just ऑप्शन 4. देख सकते हो. Minimum can be 2. Yes, minimum can be 2. रुजू जी, आपको वो 2 ऑप्शन आएगा. आप जैसे ही ऑप्शन 2 पे कुछ लिखोगे, आपको ऑप्शन 3 और 4 भी आ जाएगा. अभी मैंने जो ये चूज किया है स्टिकर, इसका कलर ब्लैक है. अगर आपको इसका कलर चेंज करना हो, वो स्टिकर के एकदम ऊपर आपको एक गोला दिख रहा होगा कलर का, आप वो क्लिक करोगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा स्टिकर का. Mahima, can you repeat how to choose the correct answer once again? Okay. Now, अभी सपोज मेरा करेक्ट आंसर है सेशल्स, तो मुझे ये देखना है कि सेशल्स ग्रीन हुआ कि नहीं. तो अभी मेरा सेशल्स ग्रीन हो गया है. बट अगर मेरा करेक्ट आंसर गोवा है तो मैं गोवा पे क्लिक करूंगी और वो ग्रीन हो जाएगा. जैसे ही वो ग्रीन हो गया मतलब आप अपना स्टोरी अपलोड कर दीजिए. जो भी ऑप्शन आपका सही है वो आपको ग्रीन पे लाना है और फिर आपको अपना स्टोरी अपलोड करना है. ओके, इज एवरीबॉडी विथ मी हियर? तो मैं आगे बढ़ती हूँ. Yes, Mahima. तो ये जैसे ही आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों को डन पे क्लिक करना है जो आपकी राइट साइड पे है स्क्रीन के. आपने जैसे ही डन पे क्लिक किया, अभी ये बहुत बड़ा दिख रहा है. अगर आप लोगों को ये इसको छोटा करना है, आप लोगों को अपना थंब और फर्स्ट फिंगर यूज करना है एंड आप लोगों को उस चीज को छोटा करना है ऐसे. इफ एवरीबॉडी कैन सी माय हैंड, आपको ऐसे करना है तो वो छोटा हो जाएगा. थंब एंड फर्स्ट फिंगर. बड़ा करने के लिए भी सेम, आप बड़ा करोगे तो आपको जूम आउट करना है, छोटा करना है तो जूम इन. आउट इन, पिंच इफेक्ट. यस, थैंक यू पारुल जी. या So actually I've told Mahima to use Hindi. So Mahima एकदम हिंदी में घुस गई है पूरा. अगर मैंने कोई वर्ड ऊपर नीचे कर दिया प्लीज डोंट माइंड. No, not at all. ओके, सब लोगों को ये समझ में आया कि स्टिकर को छोटा बड़ा कैसे करते हैं? ओके, अभी मैंने इसको छोटा कर दिया. अभी मुझे अपलोड करना है. अगर मुझे ये स्टोरी को मेरे स्टोरी में डालना है, थैंक यू पारुल जी, अगर मुझे ये मेरे स्टोरी पे डालना है, आप क्लिक करोगे नीचे, आपको सर्कल दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, उसमें लिखा हुआ है योर स्टोरी. आप लोगों को स्टोरी अपलोड करने के लिए योर स्टोरी पे क्लिक करना है. दैट्स इट. जो लोग भी अभी स्टोरी अपलोड कर रहे हैं आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हो. हाँ उर्वी जी, मैं आपको बताती हूँ. तो अगर आपको स्टोरी अपलोड करना है तो आपको योर स्टोरी पे क्लिक करना है नीचे लेफ्ट साइड में जो सर्कल है.
Paras Rampuria, whoever is that, आप पिक्चर चूज करने के बाद उसे क्रॉप नहीं कर सकते हो, आपको पहले से ही क्रॉप करना पड़ेगा और फिर आप स्टोरी में उसे डाल सकते हो. Okay, can I go to the next feature? Yes, Mahima. Okay. Okay, उर्वी जी, अगर आपको डेट रिमूव करना है, ग्रेट पारुल जी. उर्वी जी, अगर आपको डेट रिमूव करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ. ओके, तो अगर ये सपोज ये मेरा टाइम है, अगर आपको ये डिलीट करना है तो इंस्टाग्राम स्टोरी का एक ही रूल है, आपको आपके फिंगर से डेट पे क्लिक करना है और उसको नीचे ड्रैग करना है एक डस्टबिन के अंदर. ये रूल कोई भी चीज के लिए एप्लीकेबल, चाहे आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, चाहे आप कुछ स्टिकर डाल रहे हो, चाहे आप डेट डाल रहे हो. दिस इज द थंब रूल. ओके, questions. Yes, Manisha ji, that is the next feature which I'm going to. Now the next feature which I'm going to talk about is questions. मतलब अगर आप अपने फॉलोअर्स को चांस देना चाहते हो आपको क्वेश्चंस पूछने का, तो ये बहुत यूजफुल होता है तब व्हेन यू हैव अ स्मॉल बिजनेस और आप चाहते हो कि लोग आपके बिजनेस के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे, तो आप ये फीचर यूज करोगे. अगेन आपको वो स्क्वायर के अंदर जो हंसता हुआ फेस है उस पे क्लिक करना है. So Mahima, yeah, suppose I posted the story. Now I'm back to my home page. yeah. So yes. let's start from there because some of them have already posted as their story Okay. and they wanted to ask also ना कि एक ही post कर सकते हैं क्या कि. Okay. So अगर आप लोगों ने स्टोरी अपलोड कर दिया हो, अभी हम लोग सेकेंड टाइम एक स्टोरी अपलोड कर रहे हैं, तो उसका प्रोसेस सेम है. मुझे वापस लेफ्ट वाला जो कैमरा का बटन है उस पर क्लिक करना है, फिर मैं अपना सेकेंड फोटो सिलेक्ट करूंगी जो भी है. आई एम यूजिंग द सेम फोटो क्योंकि इट्स इजियर. पारुल जी, यू कैन पोस्ट अ वीडियो ऑल्सो, बट 15 सेकेंड्स से ज्यादा का वीडियो नहीं आ सकता. Okay, Vishakha ji, about iPhone, sorry, I did not get your question. So it's the same for all the phones. Yeah, it's the same process for all the phones. आप लोगों को अभी Instagram के मेन पेज पे आना है. जैसे ही आप मेन पेज पे आ जाओगे, आप लोगों को ऊपर लेफ्ट साइड में कैमरा का बटन दिखेगा, आपको वो क्लिक करना है और फिर आप अपने फोन की गैलरी से एक फोटो सिलेक्ट करोगे. तो जैसे ही आपने फोटो सिलेक्ट किया, आप लोगों को स्टॉप होना है, देन आई विल गो अहेड. ओके, नाउ मुझे अभी जो सेकंड फीचर यूज करना है वो भी मैं ऐसे ही यूज करूंगी. जो स्टिकर है जिसमें हंसता हुआ फेस है, मैं उस पे सिलेक्ट करूंगी स्क्वायर. अब आपने जैसे ही वो स्टिकर चूज किया, आपको उसमें और भी फीचर्स दिख रहे हैं. क्वेश्चंस पे आपने जैसे ही सिलेक्ट किया, आप लोगों को ऐसा एक स्टिकर दिखेगा जिसमें आपका ऊपर छोटा सा सर्कल में प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है और उसके नीचे आस्क मी अ क्वेश्चन वो लिखा हुआ है. तो आस्क मी अ क्वेश्चन की जगह आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो उसको डिलीट करके. तो मैं ये लिखूंगी, डू यू वांट टू नो अबाउट पाठशाला. तो आप लोग ये यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हो. ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसका लिमिट होता है वर्ड्स का, बट छोटे छोटे क्वेश्चंस हो. अगर सपोज आपका कोई केक का बिजनेस है, बेकरी का, तो आप पूछ सकते हो, डू यू वांट टू नो अबाउट आवर न्यू लॉन्च. इस टाइप के क्वेश्चंस. डू यू वांट टू नो अबाउट आवर फाउंडर. इस टाइप के क्वेश्चंस. तो ये सब फीचर्स यूज करने से आप अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, और जब आपके फॉलोअर्स आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ जाती है. So that is why these stickers are very very useful.
Okay, is everybody with me? Yes. Okay. Now, ये जो टाइप समथिंग है ये आपके काम का नहीं है, क्योंकि आप अपने फॉलोअर्स को क्वेश्चन पूछ रहे हो. तो जो भी आपका फॉलोअर ये स्टोरी दिखेगा वो वहां पे लिखेगा टाइप समथिंग में, क्योंकि आपने उसको क्वेश्चन पूछा है तो वो वहां पे आंसर लिखेगा. Okay. आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन लिखना इम्पोर्टेंट है. टाइप समथिंग का जो स्पेस है वो आपके फॉलोअर्स आपके स्टोरी देख के यहाँ पे लिखेंगे. तो ये आपका क्वेश्चन फीचर है. तो जिसने भी मनीषा जी ने जो क्वेश्चन का पूछा था ये आपका. ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, माय फोन हैज ओके. तो ये हमने क्वेश्चन फीचर सीखा. नाउ अब मैंने आपको 2 फीचर्स बताए हैं, बट आई वांट टू टीच समथिंग मोर ऑल्सो. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बाकी जो फीचर्स आप लोग खुद एक्सप्लोर करें. सिमिलर होते हैं. क्वेश्चन का हो जाएगा, एक क्विज का है, तो ये सब सिमिलर फीचर्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो. मैं अभी पोल्स में कितना ऑप्शन रहता है? आई विल शो. पोल्स में सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहता है. आप लोगों को अगर पोल्स पे जाना है, सेम तरीका है. आप लोगों को वो स्क्वायर वाले सिंबल पे क्लिक करना है ऊपर और आप पोल पे जाओगे. अब पोल का मतलब क्या होता है कि आप लोगों का ओपिनियन ले रहे हो. तो या तो वो ओपिनियन यस हो सकता है या फिर वो नो हो सकता है. बट इंस्टाग्राम पे आप यस नो की जगह कुछ और भी लिख सकते हो. ऑब्वियसली, नॉट एट ऑल, यस, ऑफ कोर्स. तो ये सब आप ऑप्शंस डाल सकते हो. अब पोल का जब भी कोई आपके फॉलोअर्स एक उसमें से ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें आपको परसेंटेज दिखेगा. पोल्स में आपको हमेशा परसेंटेज ही दिखेंगे. उसमें राइट रॉन्ग नहीं होता है पोल. राइट. तो आप लोगों को पोल का हमेशा परसेंटेज दिखेगा. तो सपोज 80% लोगों ने यस सिलेक्ट किया तो आपको 80 दिखेगा और बाकी 20 नो है. तो पोल्स में सिर्फ 2 ऑप्शंस हो सकते हैं. तो आप यस नो की जगह कुछ और भी टाइप कर सकते हो. ऑब्वियसली, नॉट एट ऑल. And Mahima, one thing, the answers to the quiz and whatever we did, the questions, we find it in our DM. क्या DM में आता है क्या उसका आंसर? नहीं. तो आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने अगर स्टोरी देखा है, मैं आई विल ट्राई टू सी इफ देयर इज एनी स्टोरी विद अ पोल. नहीं, पोल का तो उसी में दिखा देता है. हाँ, पोल का तो स्टोरी पे ही दिखा देगा. बट व्हाट अबाउट द क्विज एंड द क्वेश्चन? Yeah, 1 second, I will show. Okay. Now, अभी आप मेरा जैसे स्क्रीन देख सकते हो. यहाँ पे ये अकाउंट ने एक पोल का फीचर यूज किया है जिसमें वो लोग ने एक क्वेश्चन पूछा है, विल यू. अब मैंने अगर यस सिलेक्ट किया तो मुझे दिख गया कि मैक्सिमम लोगों ने यस सिलेक्ट किया था, 92%. करेक्ट. सो दिस इज, एज अ फॉलोअर मैं जब देख रही हूँ ये है. अभी पोल देखिए, क्विज देखिए. क्विज में एक्चुअली में राइट आंसर सैटरडे है. तो जब मैं एज अ फॉलोअर जब मैं ये क्विज देखती हूँ और मैंने सैटरडे सिलेक्ट किया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेरा करेक्ट आंसर है. बट ये मैं बोल रही हूँ फॉलोअर पर्सपेक्टिव से. अगर मुझे खुद का देखना है यहाँ पे कि मैंने जो पोल डाला है मुझे कितने लोगों ने यस दिया, तो आप ध्यान से अभी देखिए. आप लोगों ने जितना भी अपना स्टोरीज अपलोड किया है, आप वो स्टोरीज को क्लिक करिए. तो आप लोगों को कैसे क्लिक करना है, सेम तरीका है. आप अपने मेन पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम का मतलब होम पेज. वहां पे आप गए, उसके ऊपर में जो आपको सर्कल दिख रहा है आपके प्रोफाइल पिक्चर का, आप वहां पे क्लिक करोगे. जैसे ही आपने वहां पे क्लिक किया, आपको आपकी उंगली से ऊपर करना है उसको, स्वाइप अप. यू हैव टू स्वाइप अप द स्टोरी लाइक दिस. तो आप लोगों को आपके पोल का यहाँ पे आंसर दिख सकता है, पोल रिजल्ट्स.
No, Suniti ji, followers cannot type a question. They can only answer. Okay. Can everybody swipe up to see their story? क्या सब लोग swipe up कर पा रहे हैं? Yeah, and उसके नीचे आ रहा है insights. You will see insights here once they become available. Yes. So insights में, sorry, 1 second. Insights में अभी insights का जो symbol है वो ऐसा है, छोटा लाइन बड़ा लाइन टाइप का. It's like bars. हाँ, bars. आपने जैसे ही उस पे क्लिक किया आपको अपने स्टोरी का रिजल्ट दिख सकता है. Impressions, follows, these are all digital marketing terms, तो मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. बट यस शीतल जी, अगर आपका स्टोरी 24 आवर्स तक रहेगा तो आंसर भी 24 आवर्स तक रहेगा. ओके रचा जी, अगर आपको अपना स्टोरी देखना है तो आप लोग अपने इंस्टाग्राम के मेन पेज पे जाएंगे जहाँ पे वो घर का आइकन है. उसके एकदम ऊपर आपको एक सर्कल दिखेगा अपने ओन प्रोफाइल पिक्चर का. आपको उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के तुरंत बाद आपको स्वाइप अप करना है. जैसे ही आपने स्वाइप अप किया, यहाँ पे आप मेरा स्टोरी कितने भी लोगों ने देखा आप वो देख सकते हो. वो जो नंबर लिखा हुआ है 79, मतलब 79 followers have viewed my story. Okay. Okay. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पोल है मैं देख सकती हूँ कि 12 लोगों ने yes सिलेक्ट किया और एक जन ने no सिलेक्ट किया. Okay. Got it. प्रभा जी, आई का मतलब है कि कितने लोगों ने आपका स्टोरी देखा, और बार्स का मतलब है इनसाइट्स, मतलब आपकी स्टोरी का परफॉर्मेंस. ओके. ये मैंने आपको दिखाया कि आप पोल का जो आंसर्स है वो कैसे देख सकते हो. Correct. क्विज है, क्विज का भी आंसर्स आपको ऐसे ही देखना है. आपको अपने स्टोरी पे क्लिक करके स्वाइप अप करना है और आप यहाँ पे अपना क्विज का रिजल्ट देख सकते हो. तो जहां पे भी ग्रीन टिक मार्क है, दिस मीन्स वो करेक्ट आंसर 11 लोगों ने दिया है. आंसर सी 3 लोगों ने दिया है, बी 0 एंड ए 0. प्रभा जी, आप बार्स इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि शायद आपकी स्टोरी को 1 या 2 लोगों ने ही देखा है, तो उसका परफॉर्मेंस अभी मेजरमेंट नहीं हुआ. अब आपको एटलीस्ट 4-5 घंटे देने पड़ेंगे वो बार्स का रिजल्ट देखने के लिए. ओके. सो ऐसे आप अपना पोल का या क्विज का रिजल्ट देख सकते हो. अब मैं आगे बढ़ूंगी. Yes. ओके. नाउ हमेशा जब भी मैं बोलूंगी आप लोगों को होम पेज पे आना है, आप लोगों को यहाँ पे आना है जहाँ पे घर का आइकन दिख रहा है. आप लोग यहाँ पे आ जाइए. नाउ वी विल अगेन गो टू द कैमरा बटन ऑन द टॉप लेफ्ट साइड में. वहां पे जाके मैं स्टोरी पे जाऊंगी और मैं एक और फोटो सिलेक्ट करूंगी. मैंने अभी ये फोटो सिलेक्ट किया है. ये मेरा फोटो नहीं है, इट इज जस्ट अ फोटो फ्रॉम द इंटरनेट. सो मैंने ये फोटो सिलेक्ट किया. अब मैं आप लोगों को थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी कैसे ये फोटो को आप थोड़ा अलग दिखा सकते हो. नाउ अब आप लोग को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक स्क्रिबल जैसा एक आइकन है ऑन द राइट साइड, सेकंड फ्रॉम द राइट. ये रहा स्क्रिबल. ओके, आई थिंक मेरे स्क्रीन पे विजिबल नहीं है. अभी था. हाँ. ओके, आप लोगों को ये स्क्रिबल दिख रहा होगा डबल ए के लेफ्ट साइड में. तो ये आप जब स्क्रिबल पे क्लिक करोगे, इसका सिग्निफिकेंस है स्केच पेन. इसमें आपको स्केच पेन, इरेजर, ग्लो पेन, ये सब के फीचर्स मिलेंगे. तो आप ये सब फीचर्स यूज करके अपने स्टोरी को क्रिएटिव बना सकते हो. सो वी विल लर्न दैट नाउ. जो फर्स्ट वाला आप देख सकते हो पॉइंटेड, वो है सबसे बेसिक स्केच पेन. मतलब आप इस स्केच पेन को यूज करके अपने स्टोरी पे फ्री हैंड कुछ भी कर सकते हो. तो अभी मैं एक हार्ट बनाऊंगी मेरी स्टोरी पे. तो मैंने ये स्केच पेन पे क्लिक किया और
मैं कोई भी कलर यूज कर सकती हूँ. कलर यूज करने के लिए आप लोग को नीचे कलर का पैलेट दिखेगा, बहुत सारे सर्कल्स. तो मैंने उसमें से एक पिंक कलर सिलेक्ट किया, लाइट पिंक, और फ्री हैंड से मैं उस फोटो पे एक हार्ट बनाऊंगी. अगर आप लोगों को अपना हार्ट अच्छा नहीं लगा तो उसको इरेज करने के लिए लेफ्ट साइड में एक आपको एरो दिख रहा होगा, रिफ्रेश का एरो, आप वो सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी आपने ड्रॉ किया है वो डिलीट हो जाएगा. आईफोन में इट्स मेंशन्ड अंडू. ओके, आईफोन में अंडू होगा, एंड्रॉइड में रिफ्रेश का एरो. सो नाउ मैंने यहाँ पे हार्ट बना दिया. नाउ अभी देखिए, okay, I also have OnePlus, but I can't see any undo, so I don't know what is the problem, but anyway, अभी हर एक स्टोरी को कैसे क्रिएटिवली बनाना है वो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, बट मैं थोड़ा आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ तो आप लोग को थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आप लोग इस टाइप का कुछ कर सकते हो. तो मैंने ये जो फर्स्ट स्केच पेन था मैंने वो यूज करके हार्ट बनाया. अब मैं चाहती हूँ कि ये जो लड़की का पिक्चर है उसके पूरे पिक्चर के अराउंड मैं कुछ ग्लो के डॉट्स डालूं, ग्लो के डॉट्स. उसके लिए हम ग्लो पेन यूज करेंगे. नाउ योर ग्लो पेन इज थर्ड फ्रॉम द राइट, जिसमें एक पेन के ऊपर डॉट्स है, फुलझड़ी जैसा सिंबल है, फुलझड़ी जैसा. दैट इज योर ग्लो पेन. महिमा एक्सीलेंट हिंदी. थैंक यू कविता जी. ओके, सो मैंने वो सिलेक्ट किया और मैं उसमें भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ. मेरे फोटो के लिए मैं व्हाइट सिलेक्ट करूंगी. नाउ आप सब लोग के मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम लोग को जो पेन है उसका थिकनेस बढ़ाना या कम करना हो तो आप कैसे करोगे. तो आप जब भी एक पेन को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको एक डंडी आती है विद अ सर्कल. अगर आप वो सर्कल को क्लिक करके ऊपर जाओगे तो आपका थिकनेस बढ़ेगा, और वो सर्कल को नीचे लेके जाओगे तो थिकनेस कम हो जाएगा. जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ऊपर लिया तो मेरा सर्कल का मेरा स्केच पेन का जो थिकनेस है वो बढ़ गया, और मैंने नीचे लेके गई तो वो छोटा हो गया. तो मैं उसको मीडियम पे रखूंगी थोड़ा. तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने ग्लो पेन सिलेक्ट किया है. अब मैं इसके पूरे फेस के तरफ छोटे छोटे ग्लो सर्कल्स मार्क करूंगी. मेरे स्क्रीन पे देखिए. Can you see how different the photo looks now from the original? Yes. Changed completely. Yes. तो अभी मैंने ग्लो पेन यूज किया है which is third from the right. So now I have made my photo look a little different. और मैं क्या ऐड कर सकती हूँ फोटो को अच्छा बनाने के लिए, अब हम वो देखेंगे. इंस्टाग्राम स्टोरी पे आप हमेशा याद रखिए, आपने कुछ भी किया उसके बाद आपको टिक मार्क करना है, जो राइट साइड में टिक मार्क होगा. तो आप अगर टिक मार्क पे क्लिक करोगे तो ही आप कोई और फीचर यूज कर पाओगे. तो ना मैंने स्केच पेन का जो भी काम था मैंने कर लिया है, तो मैं अभी टिक मार्क कर दूंगी. तो जैसे ही मैंने टिक मार्क किया, आई एम बैक टू माई ओरिजिनल प्लेस वेयर आई कैन सी एवरीथिंग, फिल्टर, सेविंग का बटन और वो हंसता हुआ फेस. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जिफ्स यूज करूंगी, GIF. आप लोगों को GIF बहुत कॉमनली आपने सुना होगा क्योंकि वो हर कोई यूज कर रहा है आजकल. इंस्टाग्राम पे स्टोरी में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जिफ्स, Instagram has one of the most beautiful GIFs you will ever find. So now we will learn how to use that. अब मेरे चैट बॉक्स में मैं 3 वर्ड्स टाइप करूंगी. मैं चाहूंगी कि आप लोग वहां पे वो देखें और फिर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुने.
ये सब करेक्ट स्पेलिंग है, प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड सीइंग द स्पेलिंग्स. ये सब करेक्ट स्पेलिंग्स है. आप लोगों को, सॉरी फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, माय बैड. मैं एक बार वापस लिख रही हूँ. वीपा पियर, हैंडमेड, ये सब करेक्ट स्पेलिंग्स है. रिदवाना, आप लोग सिर्फ चैट बॉक्स को यहाँ पे देखिए और मैं जब यूज करने बोलूंगी तब आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो. ये जो मैंने नाम दिया है, दीज आर नेम्स फॉर फ्यू जिफ स्टिकर्स विच वी विल यूज राइट नाउ. और मैंने ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ऑब्वियसली हम लोग इतना काम करने के बाद हमें पता चला कि ये सब जो स्टिकर्स होते हैं ये बहुत यूजफुल स्टिकर्स है, वेरी नाइस क्रिएटिव स्टिकर्स. हेंस आई हैव टेकन डाउन दीज 3 नेम्स फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोग ये यूज कर सकते हो. अभी जिफ यूज करने के लिए मैं चाहती हूँ सब लोग मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊंगी. मैंने बताया था कहाँ जाना है. आई वॉन्ट एवरीबडी टू आंसर कि मैं जिफ यूज करने के लिए कहाँ जाऊंगी. यू कैन टेल मी, यू कैन एक्सप्लेन, या यू कैन टेल मी इन द चैट एंड यू कैन जस्ट एक्सप्लेन मी हंसता हुआ फेस या कुछ भी बोल के. यस ऋषित जी और राइट. यस 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 अपर्णा जी और राइट. यस उर्मी जी, पूजा जी, you all are right. Yes. Sheetal ji, you're right too. Yes, absolutely. I'm very happy आप लोगों को समझ में आया because ये लोगों को नहीं समझ में आता है. मेरे ऑफिस में मैंने ट्रेनिंग लिया था, लोग को समझ में नहीं आ रहा था लोग को कहाँ जाना है कुछ भी करने के बाद. Yes, पारुल जी, absolutely. Okay. So I will go to the square box वाला स्टिकर. जैसे ही मैंने वो क्लिक किया आप वहां पे देख सकते हो जिफ लिखा हुआ आ रहा है. GIF आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसा आप लोगों को ब्लिंक होता हुआ दिखेगा. वो आप वो सिलेक्ट करिए. आपने जैसे ही वो उस पर क्लिक किया आपको सर्च जिफी बोल के आएगा. अब यहाँ पे आपको वो वर्ड टाइप करना है जो मैंने आपको बोला. आप कोई भी एक टाइप करिए. चलिए आप मेरे साथ ही टाइप करिए. वीपा पियर, VIPAPIER. तो वीपा पियर जिफ से आप लोग डूडल जैसे स्टिकर्स यूज कर सकते हो अपने स्टोरीज पे. तो ये जो स्टिकर्स है दे गिव यू वेरी विंटेज फील्स. विंटेज का मतलब थोड़ा सा पुराना जैसा फील्स. आप लोग ये डूडल्स यूज कर सकते हो अपने स्टोरी पे. तो विपा पियर टाइप करने से ही आप ये यूज कर पाओगे. इसलिए मैंने आप लोगों को ये नाम बोला है. ये आप ऐसे नहीं इसको ढूंढ सकते हो. विपा पियर आप जब टाइप करोगे तो आपको ये मिलेगा. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंस्टाग्राम स्टोरीज में है बट आई डोंट हैव टाइम, इसलिए मैंने बेस्ट सिलेक्ट करके बोला है. तो यहाँ से आप कोई भी एक स्टिकर चूज करें. नाउ आई एम सिलेक्टिंग अ कॉफी मग. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. तो जैसे ही मैंने कॉफी मग यहाँ पे डाला मैं उसको छोटा वैसे ही करूंगी जैसा मैंने आप लोगों को बताया. छोटा कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है. जूम आउट, जूम इन, थंब और फर्स्ट फिंगर यूज करके. तो मैंने इसको छोटा करके इसके हाथ के पास ये कॉफी मग डाल दिया. तो कैन यू सी द डिफरेंस इन माय फोटो, ओरिजिनल फोटो और अभी के फोटो में. सो विपा पियर इज वन थिंग विच यू कैन यूज. तो यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट है या फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो लोग बहुत क्रिएटिव स्टोरीज यूज करना चाहते हैं, विपा पियर इज वन जिफ फीचर विच यू कैन यूज. ओके, नाउ ये मैंने एक स्टोरी बना दिया. अगर आप कोई भी स्टोरी बना रहे हो, आप लोग अपलोड कर रहे हो, आप लोग प्लीज मेरा हैशटैग यूज करिए. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल द स्टोरीज. हैशटैग है, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ. Now I am going to tell you how you can type the hashtag on your stories. That is the next thing which we will learn. So this is the hashtag which we will use. Okay, यहाँ पे कितने लोगों को hashtag का मतलब पता है? Please tell me. Type in the chat box. I can see Devika ji, but please type in the chat box.
Okay. Okay, so I think most of you know what hashtag is, तो मैं नहीं explain करूँगी. Okay, great, wow. You all are already so tech savvy. You all don't need me. No, but very happy to know. Sheetal ji, no problem. Okay. Okay. तो हैशटैग का मतलब होता है एक वर्ड जो एक सिंबल से चालू होता है. तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हैशटैग जो सिंबल होता है वो होता है ये हैशटैग सिंबल है. तो आप लोग अगर एक्स एंड जीरो खेलते हो तो आप लोग उसको ऐसे बनाते हो, दैट इज अ हैशटैग का सिंबल. शीतल जी, you'll have to try again. शीतल जी, वीपा पियर खुलना चाहिए. Could be network issue also. नेटवर्क इशू या. तो हैशटैग इज दिस सिंबल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. और हैशटैग में जब भी आप जो वर्ड यूज कर सकते हो उसके बीच में ना कुछ स्पेस हो सकता है, ना कुछ पंक्चुएशन हो सकता है, ना फिर कोई सिंबल हो सकता है. हैशटैग एक प्लेन वर्ड होता है विदाउट एनी स्पेस, पंक्चुएशन और सिंबल. तो हियर व्हेन आई एम टाइपिंग पाठशाला फॉर हर, ऑल्सो रिमेंबर पाठशाला में हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. या तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या फिर कोई भी कैपिटल नहीं होगा. आप मिक्स मैच नहीं कर सकते हो. यस प्रियंका जी, आई हैव 2-3 more suggestions. I will type in the chat box. Don't worry. Okay. So hashtag में ना आपका पंक्चुएशन हो सकता है, ना स्पेस हो सकता है, ना सिंबल हो सकता है. अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो तो या तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या फिर बाकी जितने भी वर्ड्स है उसके सब लेटर स्मॉल होंगे. तो मैंने जब यहाँ पे पाठशाला फॉर हर अगर चैट बॉक्स में लिखा है तो आप देख सकते हो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर खाली कैपिटल है. तो मैं चाहती हूँ सब लोग ये वाला हैशटैग कॉपी करें, पाठशाला फॉर हर. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. So please type पाठशाला for her. जिनको पता नहीं है कैसे टाइप करते हैं या फॉन्ट यूज करते हैं, प्लीज लेट मी नो. श्योर चंदना जी, यू कैन कनेक्ट विथ मी आफ्टर दिस. ओके, मैंने जो ये लिखा है अगर किसी को नहीं समझ में आया, निधि जी, बट हाउ टू हैशटैग समवन इफ समवन्स इंस्टा आईडी हैज सम पंक्चुएशन. यू कांट हैशटैग निधि जी. हैशटैग में कुछ भी पंक्चुएशन नहीं यूज हो सकते. कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क नॉट अलाउड इन द हैशटैग. ये जब हो जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हैशटैग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज टाइम नहीं है, बट बेसिक बता दूंगी. ओके, अपर्णा जी, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए. क्या आपकी स्क्रीन पे आपको ये सब दिख रहा है? वो स्क्वायर वाला स्टिकर, scribble, double A. Mamta ji, can you also see a double A on your story? That is what you have to use to type anything on the story. कुछ भी आपको अगर स्टोरी में टाइप करना है आप डबल ए यूज करोगे. तो मैं आप उस पर क्लिक करिए और आप मैंने जो लिखा है पाठशाला फॉर हर, वो हैशटैग आप टाइप करें यहाँ पे. Sure, Devika ji, I will let you know. Okay, so I am going to be typing Pathshala for her. जैसे ही मैंने टाइप किया, मैंने आप लोगों को क्या बोला, कुछ भी टाइप करने के बाद आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है. तो मैंने टिक मार्क पे क्लिक किया और मैंने अपना जो ये हैशटैग है उसको अपने फोटो पे डाल दिया. अभी मैंने यहाँ पे हैशटैग ऐड किया है. अगर आप लोगों को कोई भी अकाउंट को यहाँ पे ऐड करना है, मतलब आप अगर शाहरुख खान को फॉलो कर रहे हो, आप अगर करीना कपूर को फॉलो कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप उन लोगों को मेंशन करो. मेंशन मतलब आप उन लोगों का जो इंस्टाग्राम का
नेम है वो अपने स्टोरी में ऐड करो, तो आप कैसे ऐड करोगे वो मैं बताऊंगी अभी। ज्योति जी, यू वांट टू डिलीट द ओरिजिनल पिक्चर, तो आपको सिर्फ लेफ्ट में वो जो क्रॉस सिंबल है उस पर क्लिक करना है, तो आपका स्टोरी डिस्कार्ड हो जाएगा। श्योर निधि जी। हैशटैग या फिर कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए आपको ये AA का आइकन यूज करना है। नो मनीषा जी, यू कांट, वंस योर स्टोरी इज अपलोडेड यू कांट एडिट इट, आपको डिलीट करके वापस अपलोड करना पड़ेगा। निधि जी, so you have to click on this AA का sticker. Just give me a moment, my phone is. Okay. Okay, can everybody see my screen? Yeah. What can you see on the screen? Mirroring, Wi-Fi mirroring. Okay. निधि जी, अभी आपको समझ में आया हैशटैग कैसे ऐड करते हैं? Mahima, they can also add the hashtag and the mention through that square smiley icon. Yes, that also they can, but this is easier. So, Nidhi ji, can you see the AA on your screen on the right side top? Can you see this AA here on the right side top? Just click on that. वो जैसे आप क्लिक करोगे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। अभी आप लोग अपना फॉन्ट टाइप भी, टेक्स्ट का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पे, आप इसमें से कोई भी टेक्स्ट का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। जितने भी आपको AA सर्कल्स में दिख रहे हैं, दोज आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। सो नाउ मैं चाहती हूँ कि आप लोग द सोशल पाठशाला को यहाँ पे मेंशन करें। तो अभी आप लोगों को सोशल मीडिया पे, दिस इज अ थंब रूल, यूनिवर्सल रूल, अगर आप लोगों को कोई भी अकाउंट को सोशल मीडिया पे मेंशन करना हो, @ यूज करना है। इट इज अ यूनिवर्सल रूल, बी इट ऑन फेसबुक, बी इट ऑन ट्विटर, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, @ अगर आप लोगों को कोई भी दूसरे अकाउंट को मेंशन करना है स्टोरी पे या पोस्ट पे, आप @ टाइप करोगे। यहाँ पे मैं सपोज करियर आफ्टर फैमिली चूज करना चाहूंगी, मेरे को करियर आफ्टर फैमिली को मेंशन करना है, तो मैं लिखूंगी @ फिर मैं टाइप करूंगी करियर आफ्टर फैमिली। ध्यान रहे यहाँ पे भी आपको स्पेस या पंक्चुएशन नहीं डालना है @ के बाद, कंटिन्यूस वर्ड्स होने चाहिए। जैसे ही मैंने करियर आफ्टर फैमिली टाइप किया, आप लोगों को नीचे उनका अकाउंट दिख जाएगा और आप लोगों को वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, आप लोगों को पता है टिक मार्क पे आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन जस्ट ऐड इट हियर। आप लोग यहाँ पे सोशल पाठशाला मेंशन कर सकते हैं और करियर आफ्टर फैमिली मेंशन कर सकते हैं। सिंस यू ऑल आर लर्निंग दिस इन द क्लास, I'll be very happy to repost all the stories which all have done for us today. Devika ji, but for what? So Devika ji, this is used, for example, अगर आपकी फ्रेंड का बर्थडे है और आप उनके लिए स्टोरी डाल रहे हो, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो, तो वो भी उस स्टोरी को रीपोस्ट कर सकती है। तो हम जब भी किसी को मेंशन करते हैं, वो लोग उस स्टोरी को रीपोस्ट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पे, बट वो रीपोस्ट करने के लिए 100 फॉलोअर्स मिनिमम चाहिए। ये सब कंपल्सरी नहीं होता है, बट दीज आर सोशल मीडिया एटिकेट्स। इसको सोशल मीडिया एटिकेट्स बोलते हैं, बिकॉज इफ वी आर मेंशनिंग अबाउट अ ब्रांड, देन हमें उनका नाम भी लिखना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड हैबिट, आई वुड से।
Nidhi ji, I do not understand your question. That Yes. if, suppose if I am hashtagging you, so Hmm. whether your followers can see my post. So if I'm hashtagging a person, only my followers can see the hashtag. मैं आगे जब हैशटैग के बारे में बताऊंगी, आई विल एक्सप्लेन मोर, शायद आप लोग को तब समझ में आएगा. आई डू इट इन द लास्ट 5 minutes. But so this is how you put a hashtag and this is how you mention. I hope everybody is clear, so we can move ahead. Okay. Now I want everybody to go to their home page. अगर सबका हो गया हो, सब लोग अपने home page पे जाए. सब लोग अपने होम पेज पे जाए एंड कोई भी एक और फोटो सिलेक्ट करे. Yes, Rekha ji, @ will also be without any space. शिवानी जी, आपको अगर स्टोरी डिलीट करना है तो आप अपने इंस्टाग्राम के मेन पेज पे जाए, घर पे. Just give me a moment, my phone is acting up. ओके. सो शिवानी जी, अगर आपको स्टोरी डिलीट करना है, आप अपने इंस्टाग्राम के मेन होम पेज पे जाए. जो स्टोरी ऊपर अपलोड हुई है सर्कल पे, आप उसको क्लिक करिए और स्वाइप अप. जैसे ही आपने स्वाइप अप किया, आपको एक्सट्रीम राइट साइड में एक डस्टबिन का बटन दिखेगा, डिलीट का बटन. आप वैसे डिलीट कर सकते हो हर एक स्टोरी. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन. तो शिवानी जी, थर्ड वाला ना आपको दिख रहा होगा. थर्ड वाला आप सिर्फ अपनी उंगली से उसे राइट करें और आप थर्ड पे जाए और सेम चीज करना है, आपको डिलीट करना है. मेरे स्क्रीन पे आप देखिए मैं कैसे गई. हाँ, और फिर आपको डिलीट करना है. Okay, I'm going ahead now. This is another very interesting feature, and ये ट्रायल एंड एरर से ही आता है. तो आप आज के क्लास के बाद मैं चाहती हूँ सब लोग ट्रायल एंड एरर करें, तो ही आप सीखेंगे. एक क्लास में मैं आपको फीचर्स बता पाई, बट आप लोग जितना ट्राई करोगे आप लोगों को और कंफर्टेबल होगा. और आप लोग प्लीज रोज स्टोरी डालिए इफ यू ऑल हैव अ बिजनेस. हाँ कीर्ति जी, आई विल शो. So let me finish this, then I'll show that. That is the last one which we can cover. Okay. So now I want everybody to be on the home page and click on the camera का icon on the top. Then आप कोई भी एक select करें picture. अभी मैं क्या करूँगी, मैं ये पूरे पिक्चर को white wash कर दूंगी. मैं एक नया फीचर बता रही हूँ जिससे आप पूरे पिक्चर को white wash करके उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हो. तो नाउ मैं कैसे व्हाइट वॉश करूंगी? एनी गेसेस कि मैं कैसे व्हाइट वॉश करूंगी? स्केच पेन, हिंट, स्केच पेन का फीचर मुझे यूज करना है. एनी गेसेस? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? चैट बॉक्स पे लिखिए. यस मनीषा जी, चैट बॉक्स. यस 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 रिचा जी, राइट. इरेजर, या. ओके. सो इरेजर, कोई भी चीज इरेज करने के लिए हमें पहले उसमें कुछ करना पड़ता है, करेक्ट? तो इसलिए हम पहले व्हाइट वॉश करेंगे फोटो को, क्योंकि ये फोटो मैंने कहीं और से उठाया है तो मैं इसको इरेज नहीं कर सकती. मैं पहले अपने फोटो पे कुछ स्क्रिबल करूंगी या व्हाइट वॉश करूंगी, फिर मैं इरेजर यूज करूंगी. तो नाउ अगर मुझे ये फोटो को व्हाइट वॉश करना है, मैं स्केच पेन वाले आइकन पे जाऊंगी जो स्क्रिबल है, स्पाइरल जैसा. मैं वहां पे गई, मैंने एक फर्स्ट वाले स्केच पेन को चूज किया, व्हाइट कलर सिलेक्ट किया, मैंने अपनी उंगली से स्क्रीन पे प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस किया, तो आपका पूरा पिक्चर व्हाइट हो जाएगा.
आई रिपीट, मैंने स्केच पेन सिलेक्ट किया पहले, फर्स्ट वाला, फिर मैंने कलर सिलेक्ट किया स्केच पेन का। जैसे ही मैंने कलर सिलेक्ट किया, मैं अपने फर्स्ट फिंगर से स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करूंगी तो मेरा पूरा पिक्चर राइट हो जाएगा। नाउ अब मुझे ये पिक्चर को इरेज करना है, तो जैसे ही मैं इसे इरेज करूंगी मुझे मेरा ओरिजिनल पिक्चर का थोड़ा थोड़ा पार्ट्स दिखेगा। So that gives you a very good effect to the photo. Eraser. Eraser is second from the right. Eraser का tool is second from the right. मैंने For वो iPhone, it's the first from right. okay. So for iPhone users, thank you Kavita ji. It's first from the right. And for other people, it is second from the right. अब मैं इरेजर का जो विड्थ है उसको थोड़ा बढ़ाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा फटाफट इरेज हो जाए, तो मैं उसको ऐसे बढ़ाऊंगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और फिर मैं फ्री हैंड वे में उसे इरेज करूंगी जो भी मैंने व्हाइट वॉश किया है। नाउ कैन यू सी हाउ बेटर द फोटो लुक्स? दैट वाज लुकिंग लाइक अ प्लेन फोटो। अभी ये इरेज करने के बाद मेरे फोटो को थोड़ा अलग फील आ रहा है। आप इसको इरेज कोई भी शेप में कर सकते हो, हार्ट शेप में, स्पाइरल शेप में, जिगजैग शेप में। अब मैं हार्ट में करूंगी। ये आपके ऊपर, आपको क्या यूज करना है। मुझे मन हुआ हार्ट यूज करने का, मैंने हार्ट यूज किया। जिसको स्पाइरल यूज करना है आप स्पाइरल यूज करें। यस श्वेता जी, दैट इज माय नेक्स्ट थिंग, हाउ टू ऐड टेक्स्ट। नाउ आई विल शो यू आप कैसे अपने टेक्स्ट में शैडो इफेक्ट डाल सकते हो। जो भी हम टेक्स्ट यूज करेंगे हम उसमें शैडो इफेक्ट डालेंगे। अब शैडो इफेक्ट डालने का लॉजिक एक ही है कि जो आप कलर्स यूज कर रहे हो उसमें से एक डार्क हो और एक लाइट हो। मतलब लाइट मतलब कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट। तो नाउ आई विल पुट अ टिक मार्क क्योंकि मेरा ये हो गया है। Mahima, there is a two question: how to increase the width of eraser, and someone is not able to do the full whitewash. ओके तो नायरा जी, व्हाइट वॉश करने के लिए आपको कोई भी एक स्केच पेन सिलेक्ट करना है। स्केच पेन सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका एक कलर यूज करना है, एंड देन यूजिंग योर फर्स्ट फिंगर यू जस्ट हैव टू लॉन्ग प्रेस। आपको स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है। नाउ इरेजर, जैसे ही मैंने इरेजर सिलेक्ट किया प्रभा जी, आपको लेफ्ट साइड में एक डंडी आती है विद अ स्मॉल सर्कल। तो वो डंडी से जब आप ऊपर जाओगे तो आपका इरेजर का विड्थ बढ़ेगा और नीचे जाओगे तो कम होगा। ओके नाउ ये सब लोग का हो गया हो तो मैं अभी इसमें टेक्स्ट ऐड करूंगी, शैडो इफेक्ट। जैसे ही आपने हर एक टूल, शिवानी जी इरेजर इज सेकंड फ्रॉम द राइट फॉर ऑल एंड्रॉइड यूजर्स एंड फर्स्ट फ्रॉम द राइट फॉर आईफोन। नाउ जैसे ही मैंने ये चीज किया मैं उसको पहले टिक मार्क करूंगी क्योंकि मैं वो मेरा हो गया है। अब मैं जाऊंगी टेक्स्ट यूज करने के लिए। तो टेक्स्ट यूज करने के लिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। yes yes right 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 everybody is right, very nice very nice। okay मैं जाऊंगी डबल ए पे एंड आप उसमें टेक्स्ट का टाइप्स चूज कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया, वो मैंने मुझे मन हुआ तो मैंने कर लिया। तो मैंने उस फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया और मैं अपना जो भी फोटो के बारे में लिखना चाहूंगी मैं वो टाइप करूंगी, फर्स्ट लव। ये मेरा एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर है यानी कि व्हाइट। अब शैडो इफेक्ट देने के लिए आई विल चूज एन ऑपोजिट कलर।
तो थोड़ा डार्क होना चाहिए तो ही शैडो इफेक्ट आएगा। तो मैंने ये टेक्स्ट व्हाइट में लिखा, मैं पहले इसको टिक मार्क करके फोटो में कहीं एक जगह डाल दूंगी, मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैं वापस वो सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी ब्लैक कलर में। जैसे ही मैंने ब्लैक पे उसको लिखा, मैं टिक मार्क करूंगी और मैं व्हाइट के ऊपर उस ब्लैक को लिखूंगी शैडो इफेक्ट देने के लिए। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड। ये बहुत लोगों को नहीं आता है फर्स्ट टाइम, दिस विल ओनली कम विद प्रैक्टिस। ओके रेखा जी, कैन यू टाइप द फर्स्ट वर्ड, एनी वन वर्ड विच यू वांट, एक कलर में, लाइट कलर में। इट विल वर्क निधि जी, इट विल वर्क। नायरा जी, आपका इरेजर विड्थ आप ऊपर करोगे तो एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही बढ़ता है, अगर आप शायद उससे ट्राई करोगे ऊपर करने का तो नहीं बढ़ेगा। That option is only not coming on my phone. I don't know whether it is there with iPhone or not. The eraser option? No. That increasing of the width. Okay. Yes, Sheetal ji. Kavita ji, can you see something like this on the left? No, that is only coming when I press on the double A. But for other options, this one is not coming. Okay, that is strange. That is strange. It should be coming. I don't know. Yeah, I don't know even. Okay. So I am repeating, Rekha ji, you asked, right? Okay, so this is the last feature which I'm repeating. Okay. तो रेखा जी, आपको अगर शैडो इफेक्ट देना है तो आप सबसे पहले एक लाइट कलर चूज करोगे और एक डार्क कलर। सबसे पहले आप एक लाइट कलर चूज करके लिखोगे वो कलर में, व्हाइट में। आपने जैसे ही लिखा, आप टिक मार्क करके उसको, वर्ड को कोई भी एक जगह फोटो पे डाल दोगे। फिर आप सेम स्टेप रिपीट करोगे ऑपोजिट कलर के लिए, यानी कि मेरे केस में मैं ब्लैक यूज कर रही हूँ। सेम स्टेप। जैसे ही आपने ब्लैक चूज किया, आपको वो ब्लैक को, बेसिकली डार्क कलर should be placed on the top of the light color. That is the rule of shadow. तो मैंने जैसे ही ब्लैक को व्हाइट के ऊपर प्लेस किया सेम साइज में लाके, तो मेरा शैडो इफेक्ट आ गया। यस मनीषा जी, ग्रेट। श्वेता जी, flashing effect you can give with the help of glow pen. Okay, so these are few things you can try in Instagram stories, because बहुत सारे features है जो आप use कर सकते हो। These are few things which I use, and ये करते करते ही आएगा सबको। शैडो इफेक्ट का यूनिवर्सल रूल यही होगा, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर। डार्क कलर है जो लाइट कलर के ऊपर आना चाहिए। Can send the white to front and black to back. You can send that, but Priyanka ji, it might not look good. So if you try in my case, see, इसमें मैंने जब किया मेरा ब्लैक पूरा छिप रहा है। This is looking more white than shadow. That is why I advised कि आप जो ब्लैक कलर है उसको ऊपर डालें, तब आपको शैडो इफेक्ट आएगा। Okay. Now we can try the last GIF, handmade. If you all want to try handmade,
आपको हैंडमेड जिफ को खोज के अपने स्टोरी पे डालना है. It is not handmade, it is handmade. HANMADE. उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे दिखेंगे. Yes, Naira ji, you can change the font whenever you want before uploading the story. Pooja ji, I just showed the shadow effect. I think if I repeat, it will get too long. So when I'm typing handmade for GIF, आप देख सकते हो, you get some beautiful stickers here. And then I can just type it here. I am repeating the GIF का thing again here. मैं आप लोगों के लिए type कर देती हूँ. So this is how you can use Instagram stories. ये बहुत कुछ है. I'm sorry I didn't have so much time, but Naira ji, GIF option is under the square box with a smiling face. वो आपने select किया, फिर आपको GIF का sticker आएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो. And then you can type whatever you want. Mahima, there is a upward going arrow. What is that for? Where? Sketch pen वाले में ही है. 1 second. Okay, that one. Yeah, I'll show that. Okay, got it. Yeah. Okay. So now Kavita ji has asked a doubt कि sketch pen हम लोग जब use करेंगे, उसमें जो upward facing एक option है. Upward facing arrow is for you to draw arrows without any zigzag feeling. For example, जब आप arrow draw करते हो free hand, कभी-कभी वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. तो ये फीचर के साथ आप जब जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे अपने फोटो पे, आपको ऑटोमेटिकली एरो का पॉइंट आ जाएगा नीचे. Okay. Got it. Thank you. So this is the arrow. आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन करना है, वो अपने आप एरो का पॉइंट आ जाएगा. जित्रा जी, yes, the heart with a plus sign is for chalk like effect on your photo. अगर आपको चौक जैसा इफेक्ट देना हो फोटो में, तो स्केच पेन में ही जो हार्ट विद अ प्लस साइन, आई थिंक आईफोन डजंट हैव दैट. नहीं है. हाँ. आईफोन यूजर्स डिसअपॉइंटिंग. सो जो हार्ट विद अ प्लस साइन है, वो चौक जैसा इफेक्ट देता है आपकी फोटो में. ओके. सो आई होप इंस्टाग्राम स्टोरीज में मैंने थोड़े नए फीचर्स बताए जो आप लोगों को नहीं पता थे. Otherwise, it would have been useless. I will want to wind up the session now because I think 4:35 हो गया है. And we can take up questions now if anybody has. Okay, yeah, hashtags. I was anyway coming to this. Okay. So hashtag is extremely useful on Instagram because हम लोग अभी इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स को भी फॉलो कर सकते हैं. तो अगर आपका एक बहुत पॉपुलर हैशटैग है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, और जितने भी लोगों ने हैशटैग वो वाला यूज किया है, आप उन सभी का पोस्ट एक साथ देख सकते हो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. यस ज्योति जी, यू कैन सेव द स्टोरी फॉर पोस्टिंग लेटर. आप सेव कर लीजिए फोन पे और आपको अपलोड करना है बाद में जब भी हो. Preeti ji, upward arrow is on the sketch pen feature. It should, there is an upward facing thing which you'll see. You'll have to see once more. It is there. If you see it, you will you were saying you are not getting the eraser को exchange करने का, बड़ा करने का नहीं मिल रहा था ना iPhone में. It's there only. Okay. So what's happening when you do this white, पूरा flash कर देते हो पूरा white, तो वो side में है ना, वो दिखता नहीं. It's only that like it gets thing. So if you go there and do the adjustment, it comes in immediately. Thank you so much for the advice and the help. I don't use iPhone, so I'm not sure किस side आता है, but it is there in all the phones. It's on the left side only, जहाँ पे है उधर ही, but just because वो white होने की वजह से वो blend हो रहा है पूरा. ज्योति जी, आपको सेव करना है
आपको जैसे ही आपने स्टोरी पे क्लिक किया, एक सेकेंड, आपको वो जो स्माइली है सर्कल वाला, उसके राइट साइड में एक डाउनवर्ड फेसिंग एरो दिख रहा होगा, आप वैसे सेव कर सकते हो. दैट इज हाउ यू सेव इट. ओके ओके, आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू हैशटैग बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. तो आप लोग इंस्टाग्राम के होम पेज पे आ जाइए. जैसे ही आप होम पेज पे आ गए, आपको ऊपर में एक मैग्नीफाइंग ग्लास या सर्च का बटन दिख रहा होगा. जैसे ही आपने वो क्लिक किया, सर्च के बारे में आपको टाइप करना है हैशटैग. जैसे कि आप द सोशल पाठशाला टाइप करिए हैशटैग में. जैसे ही आपने हैशटैग द सोशल पाठशाला टाइप किया, आप लोगों को ऐसा कुछ दिख रहा होगा, फ्यूअर देन 100 पोस्ट. मतलब अभी इंस्टाग्राम पे आप कोई भी हैशटैग यूज कर रहे हो विच इज पॉपुलर, तो जितने भी लोगों ने वो हैशटैग यूज किया है, सबका पोस्ट आपको एक साथ दिख जाएगा. तो जैसे ही मैंने हैशटैग द सोशल पाठशाला पे क्लिक किया, तो जितने भी मेरे पोस्ट है सोशल पाठशाला वाले, मुझे सब दिख रहे हैं. एंड आई कैन इवन फॉलो दिस हैशटैग. I can even follow this hashtag. So why hashtags are important is because Instagram पे बहुत सारे popular hashtags होते हैं. So for example, if you are in the hotel business, तो आप मुंबई में होटल चलाते हो, तो अगर आपने hashtag यूज किया hashtag मुंबई hotels, तो जो लोग भी Instagram बहुत यूज करते हैं and they want to try out a new hotel, वो लोग Instagram पे सर्च करेंगे मुंबई hotels. And जैसे ही वो लोग ने वो hashtag सर्च किया, तो जितने भी पोस्ट ने वो हैशटैग यूज किया है, उन सबका पोस्ट दिख जाएगा. तो हैशटैग से आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़ती है. बट इन दैट केस यू ओनली हैव टू यूज द राइट हैशटैग्स. अगर आप अचानक से अपने नाम का हैशटैग यूज कर दोगे जो किसी ने कभी यूज ही नहीं किया हो, इट डजंट मेक सेंस, इट इज इलॉजिकल. मनीषा जी, यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ. सोनिका जी, for your business, you'll have to research about the hashtags. So you can, if you are from Kolkata, you can just type hashtag graphic designers of Kolkata. अगर आपको बहुत सारे posts दिख रहे हैं, then you can just choose that hashtag you want to use in your post. Yes, Manisha ji. You'll have to unmute. I think nobody can unmute themselves, Kavita ji. Yeah. Actually, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि हमें बहुत अनकॉमन हैशटैग्स यूज करने चाहिए जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं हो. If we want to be up in the list of searching and all, कॉमन हैशटैग्स हमें नहीं यूज करने चाहिए. Yes. So of course, so जितने भी Instagram पे हैशटैग्स होते हैं, it varies between 100, like number of hashtags, 100 to 1 million. तो suppose आपने एक हैशटैग यूज किया ब्लैक ड्रेस. अब ब्लैक ड्रेस इतना कॉमन हैशटैग है, आप अपने पोस्ट में अगर ब्लैक ड्रेस का हैशटैग यूज करोगे, आपका पोस्ट पता नहीं कौन सी जगह पे चले जाएगा, कोई देख भी नहीं पाएगा. तो आप ब्लैक ड्रेस की जगह लिखिए बेस्ट ब्लैक ड्रेस, हैशटैग बेस्ट ब्लैक ड्रेस. तो आप देख सकते हो, अगर आपको हैशटैग बेस्ट ब्लैक ड्रेस का सिर्फ 2000 पोस्ट दिख रहा हो, then it is a good way to use it, because आपका वो लॉस्ट नहीं होगा. Okay, is there any other question which anybody else has? Anybody else wants to ask anything? Could be Mahima content calendar. Oh yeah. So I am gonna just send the link of that on the chat box. Yeah. So please वो देख लीजिएगा. Just give me a moment. Collage in story and multiple pictures in story. So collage, I guess they have to pre-make the collage and then post. No, you can do it. I'm just going to show it quickly. Okay, आप लोग सब लोग अपने फोन के होम पेज पे जाइए. इंस्टाग्राम के आप लोग सब लोग होम पेज पे जाइए. आप लोगों को अगेन जो भी स्टोरी आप अपलोड करते हो, वो क्लिक करेंगे कैमरा आइकन पे. कैमरा आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट में नीचे दिख रहा होगा क्रिएट, बूमरैंग एंड लेआउट. राइट.
So this is how you can choose a collage. You can select the image like this. एक बॉक्स पे सिलेक्ट कर सकते हो आप इमेज. एक बॉक्स पे क्लिक करिए, फिर आप गैलरी से जाके इमेज सिलेक्ट करिए. This is how you can create a collage. And इसमें आप 1 का 2 का 3 का 4 का कैसे भी कर सकते हो. इसमें अलग अलग टाइप्स है. Similar to how we do in the post. Yes. Basically. So you can do this. 6 का भी है, 3 का भी है. तो आप ऐसे कर सकते हो. आपको कैमरा के आइकन पे जाना है, फिर लेआउट पे क्लिक करना है, एंड वट एवर लेआउट यू वांट, आप हर एक बॉक्स पे क्लिक करके पिक्चर सिलेक्ट करें. ओके. Okay, I am sending the link of the sample here. Yeah. तो ये कंटेंट कैलेंडर का सैंपल है. आप लोगों को आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए. जिसको भी नहीं आया, वी विल ट्राई टू टेक इट अप इन द नेक्स्ट टाइम वी मीट. बट ममता जी, यू हैव टू गो टू योर होम पेज, क्लिक ऑन द कैमरा आइकन जहाँ से आप स्टोरी अपलोड करते हो. वो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको लेआउट आएगा और आपको उस पर क्लिक करके कोलाज डालना है. यस, whip up your handmade and Ridwana. Okay, so whoever wants to follow us on Instagram, it's the Social Pathshala, and this is my number. This is my business number, so no problem. Not sharing my personal anyway. Anything more flashy? Priyanka ji, you can make it more flashy by using flashy GIFs. बहुत सारे flashy GIFs है. तो आप जब GIF में search करोगे, आप sparkle, glow ऐसे टाइप करोगे तो आपको थोड़े flashy GIFs आएंगे. Okay, I think that's it. Anybody else has anything else to ask? Thank you so much, Mahima. Wonderful session. Wonderful. Actually, it was wonderful. Thank you, Kavita ji. I hope everybody enjoyed it and found it useful. Yes, Bhavika. Yes, it was amazing. It was really nice. बहुत अच्छे से, and I really enjoyed the Hindi words what you were using. हंसता हुआ चेहरा and all that was like, wow, how can someone say that also? How can you think of that also? It was so nice. And so much to learn, so much to understand. I think now you can ask everyone to at least daily put 2 story and tag you. Yes, please tag. जिसका भी business है नहीं है, आप लोग stories please use करें. It's a beautiful feature of Instagram, and you all will enjoy using it. बहुत कुछ है story में करने के लिए. आज जो मैंने बताया, it is just 30%. So Vishaka is saying at least now we don't have to run behind our kids. Vishaka ji, I still have to teach my mother, by the way. And please follow me on Instagram. Write me reviews. If Absolutely. You're class, I'll be very happy to read all of that. My motivation comes from the feedback. So that is the only way I can continue doing this. Absolutely. Thank you so much, Mahima. Thank you. I want everybody to switch on their videos, and if I can just take a nice picture. Okay. Switch on all your videos. I want to see all the beautiful faces. Okay. Thank you so much, everyone. I hope this was useful. It was. Believe me. मैं हिंदी word ढूंढ रही हूँ तुमको कैसे thank you करूँ, because you use such a good Hindi words. Fuljadi. I'm embarrassed now. My Hindi is really poor. No, but that was such a cute and nice, and समझ में भी आ रहा था तुम क्या बोलना चाह रही हो. Thank you, Bhavika ji. I'm glad you all liked it. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you everyone for joining in.